السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، بڑی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب تک صرف جمعہ کے ویڈیو جو لائیو ہوتے تھے بیانات کے وہ بناتا تھا، وقت نہ ملنے کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ آج میں کوشش اور یہ نیت بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2 دن 4 دن کو کچھ نہ کچھ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، جس میں انشاءاللہ قرآن حدیث کے تعلق سے دنیا اور آخرت کے بارے میں انشاءاللہ جو بھی ہو سکے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائڈ میں ایتر وغیرہ جو رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے امامت کے ساتھ ساتھ ٹیلر کام تو مجھے 3-4 سال پہلے میں نے سیکھ لیا تھا ٹیلر کام، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایتر ٹوپی۔ ایک حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، اگر جنت میں تجارت ہوتی تو کپڑے کی اور ایتر کی تجارت ہوتی، تو ہم نے بھی اسی نیت سے کہ چلو اللہ پاک نے ایتر کی تجارت میں برکت رکھی ہے، مختصر طور پر چھوٹی سی لیکن شروع کی الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں شاہ گڑھ میں جو رحمانیہ مسجد ہے وہاں پر امامت اور اسی کے ساتھ ساتھ مکتب بھی پڑھاتا ہوں صبح میں اور شام میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک چھوٹی سی شاپ بھی ہم نے شروع کی ہے جس میں میں ٹیلر کام بھی کرتا ہوں، کلی کا اور نہرو ڈریس یہ سیتا ہوں، مکتب کے بچوں کے بڑوں کے کپڑے سیتے الحمدللہ۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کل بہت سارے لوگ، خاص طور سے اگر کوئی اہل علم ہے، کہیں پر امامت یا مدرسے میں درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ان کے جو مقتدی ہے تو اکثر مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ بس علماء نے صرف اور صرف امامت یا مدرسہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس یہ سمجھتے ہو۔ حالانکہ کفاروں کا بھی یہی عقیدہ تھا اور یہی وہ سوچتے تھے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ تو کھاتا بھی ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہے، یہ تجارت بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بازار بھی جاتا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ رسول ایسا ہو جو کاروبار نہ کرے اور جس کی بیوی بچے نہ ہو، وہ تجارت نہ کرے، بس مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرے، ایسا وہ چاہتے تھے۔ آج کل کے لوگ بھی، اور خاص طور سے جو امام جہاں پر امامت کرتے ہیں ان کے خاص طور سے مقتدی وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں، ہمارے جو مولانا ہے، انہوں نے صرف اور صرف امامت کرنا چاہیے، امامت کے ساتھ نہ تجارت کرنا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ہم ان کی زندگی پڑھیں۔ صحابہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور صحابہ کرام بھی مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے آئے، تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بنایا، انصار اور مہاجرین کو۔ لیکن جو مکہ سے مدینہ جو صحابہ آئے تھے، ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ہم مدینہ کے جو صحابہ ہیں، جو مسلمان ہیں، ہم ان کے زیادہ ان پر بوجھ بنے۔ تو انہوں نے خود سے اپنی کیا کی، تجارت شروع کی۔ تو تجارت میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، اس لیے آج مسلمان
मुसलमानों को चाहिए कि दूसरों की गुलामगिरी ना करे। आज मुसलमान क्या है, बस दूसरों का गुलाम बनने के लिए दिल से और जान से तैयार है। हालांकि कुछ न कुछ अपने एतबार से छोटी मोटी तिजारत शुरू करना चाहिए। अल्लाह पाक ने तिजारत में बरकतें रखी है, लेकिन ये भी बात याद रखें कि तिजारत करें तो सिर्फ तिजारत में मुनहमिक न हो, बल्कि अल्लाह के अहकाम, नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा, आखिरत, ये चीज़ सब याद रखें हम। सबसे पहले तो यही चीज़ें हैं। इसके वास्ते अगर कोई तिजारत करता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी देखें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में भी और मदीने में भी क्या की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे उजरत के ऊपर। अब सोचने की बात है, जिसके खातिर अल्लाह पाक ने तमाम कायनात को बनाया और जिसको तमाम इंसानों का और जिन्नातों का सरदार बनाया, वो नबी जो तमाम अंबिया का इमाम है, इमामुल मुरसलीन है, उस नबी के बारे में आता कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, दूसरों की बकरियां चराया करते थे कुछ दीनार और दिरहम के ऊपर, यानी उजरत के ऊपर। तो आज का मुसलमान ये समझता है। तो आज हम सब मुसलमानों को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने अपने एतबार से तिजारत करें। तिजारत में अल्लाह पाक ने बरकत रखी हुई है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तिजारत की, हज़रत उमर ने की, हज़रत उस्मान, हज़रत गनी, आप अक्सर सहाबा की ज़िंदगी देख लीजिए, उन्होंने तिजारत की, अल्लाह ने उनकी तिजारत में भी बरकत दी। आप मुझे खुद बताइए, जैसे कि मैंने एक हदीस पाक आपके सामने पढ़ी, अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, जो सच्चाई के साथ और अमानतदारी के साथ तिजारत करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको नबियों के और सिद्दीकीन के और शुहदा की सफ में खड़े करेंगे। आज वो लोग तिजारत करते हैं जिन्हें दीन का कुछ इल्म नहीं, हलाल और हराम की कुछ तमीज़ नहीं, वो तिजारत करते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और जो दीनदार है, जो अहले इल्म है, अगर वो तिजारत करेंगे तो अल्लाह क्या बरकत नहीं देगा। और जब ये पैसा कमाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सही जगह पैसा लगाएंगे। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करें, हम भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करें। और इसी तरह बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो माली एतबार से बहुत कमज़ोर होते हैं, कभी कुछ हालात आ जाते हैं, तो अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम उनको दे सकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो आज हम सबको चाहिए कि हम पैसा इस नीयत से कमाएं कि हम देने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने, और गरीबों की, मोहताजों की, अपनी फैमिली की हम मदद करने वाले बने, ताकि हम जब उनकी मदद करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो इंसान इस नीयत से पैसा कमाए, इस नीयत से तिजारत करे कि किसी के सामने हाथ न फैलाए और फ़ख्र न करे, तकब्बुर न करे, इन चीज़ों से बचे, और इसलिए पैसा कमाए ताकि वो क्या करे, अपनी बीवी पर, माँ बाप पर, बच्चों पर खर्च करे, खुद पर खर्च करे, दीन के कामों में खर्च करे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। इसके वास्ते मेरे इस पूरे वीडियो का खुलासा यही है, हम अगर दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, इमामत में लगे हुए हैं, या फिर किसी मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा वक्त हम क्या करें, तिजारती लाइन के लिए भी देने की कोशिश करें, ताकि हम सब एक बात और जानते हैं कि इमामत हो या मदरसा हो, इसकी पेमेंट कितनी रहती, 8,000, 10,000, 12,000, और आजकल के खर्चे हम सब जानते हैं। कम से कम महीने भर का खर्चा आम एतबार से, शादीशुदा जिंदगी के गुजरने के वास्ते कम से कम 20,000 रुपये महीना तो आराम से लगता है, कम से कम 20,000 रुपये। तो जिसकी आमदनी 8 से 10,000 होगी तो वो कैसा दूसरों पर खर्चा करेगा, कैसा हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर सकेगा, कैसे अपने वालिदैन की, बीवी की, बच्चों की वो खिदमत और ज़रूरतें पूरी कर सकेगा। इसके वास्ते इमामत करे, मकतब करे, उसी के साथ साथ अगर कोई मदरसे में पढ़ाता तो मदरसे में पढ़ाए। लेकिन एक बात ये कि तिजारती एतबार से कुछ न कुछ अपने आप को हम मजबूत बनाने की कोशिश करें,
ताकि अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के जब अल्लाह पाक हमको माआशी एतबार से मजबूत बनाए तो हम इंशाअल्लाह लेने वाले नहीं बल्कि लोगों को देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आज माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। और आप हजरात से भी मैं एक यानी माफ़ी चाहता हूँ। आज ख़ास तौर से उलमाए किराम, अइम्माए किराम और अहले इल्म, इनसे मैं ख़ास तौर से माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अवाम उलमा को हिकारत की निगाहों से देखते हैं। जहाँ कोई मदरसे का, मस्जिद का सफ़ीर आ गया तो उसको हिकारत की निगाहों से देखा जाता। काश अगर हम माआशी एतबार से मजबूत होते, माआशी एतबार से मजबूत होते तो हमें किसी के सामने झोली फिराने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। आज कितने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि फ़ला का हादसा हो गया तो उसके लिए चंदा किया जा रहा है, फ़ला के साथ ये मामला हो गया तो उसके साथ चंदा किया जा रहा है। काश अगर हम माआशी एतबार से मजबूत होते तो हम भी उनकी मदद करते। इसके वास्ते हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, मिसाल तौर पे इमामत हो, मकतब हो, मदरसा हो, ये हम कंटिन्यू रखें। नंबर 1 पर तो इसी को रखें, लेकिन उसी के साथ साथ हम माआशी एतबार से मजबूत अपने आप को बनाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।